On behalf of the ministry, sir, definitely whatever best we can do for the differently abled community or the senior citizens of this country, we are going to do, sir. And I don't specifically have what is being done on that side, but I'll pass on the information to the honorable member, sir. Sri Dayanidhi Maran. Thank you, sir. Thank you, honorable speaker, sir. Sir, we have a young dynamic minister. हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन बेटे बेटे वोट टिप्पणी करते हो आप। I apologize, sir. Sir, I'd like to congratulate a young and dynamic minister. We wish you very best for the part of DMK party. We really welcome you. Your father was a good friend of DMK. Sir, I have the habit of booking out my ticket for Delhi online through Vistara Airlines, which belongs to Tata's. And the software is handled by Tata TCS. So this is seen, every time I've seen. When I book a ticket, it's around 33,000 rupees, sir. One-way ticket from Chennai to Delhi. When I go to make the payment, an error message comes. The moment the error message comes, the price goes to 93,000 rupees or 78,000 rupees. What? Yes, sir. This has been happening because probably Tata TCS is using its supremacy in the software. And because we have so everyone's got a miles account, so we are logged in. So this is happening very frequently, even from Delhi to Chennai or Chennai. So this doesn't come under the DGCA rules. Because DGCA is only in charge when the airline cancels a flight or reschedules a flight. But this is happening in software. Sir, there's a conspiracy happening. And would like you to do an inquiry, thorough inquiry, because Tata now is the monopoly in the business segment. So this money is paid by the government of India. The ticket fare. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर विषय उठाया है और ये बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की क्योंकि इसका पैसा पार्लियामेंट से जाता है, इसलिए मैं चिंता है। Definitely, sir. We'll get the matter investigated, and also our senior member has mentioned, DGCA looks after the rights of the passengers and it dwells into that. And also there is DGCA traffic monitoring, tariff monitoring unit also, which looks after this specific issue that you have said. So we are going to investigate that. We are going to ensure that this kind of incidents doesn't happen in the future, sir. Thank you. Question number 45, श्रीमती कमलजीत सरावत। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 45 का क से घ जो उत्तर है वो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, जो टेबल पर आंसर किया गया है मैंने उसको पूरा ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का। एमएसएमई में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, और इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है तो 2021 तक ये संख्या 4,88,000 थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने उद्यम नाम से जो योजना लेकर आए 1 जुलाई 2020 को, वो बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, और उसकी वजह से ये जो आंसर मुझे मिला है इसमें जो संख्या है महिलाओं की वो 4,88,000 से बढ़कर 1,84,00,000 हुई है सर। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उद्यम को और सपोर्ट करने के लिए वो उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो विमेंस यहाँ पर एमएसएमई में काम कर रही हैं उनका सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने
आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं को उत्थान में खास करके जो MSME हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें 2 सेक्शन टाइप के होते हैं। एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी। तो उसके लिए महोदय देखिए, उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है। तो माइक्रो में उन्होंने 26,921 दिया है और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है और उसी प्रकार से UAP में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है और UAP में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस एरिया में आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष, और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो MSME में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल MSME रजिस्टर्ड में जो इम्प्लाइड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है, उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में 2 भाग है। एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है और एक है UAP जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या GST की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है। तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है इससे पता चलता है महोदय। बहुत अच्छा। श्रीमती अपराजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है। जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले MSME का संख्या का सवाल है, समस्त भारत में 1,84,57,000 समथिंग है।
उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है वो 6,96,559 है। और प्रश्न में ही पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है जो बता दिया है कि 35,935 है। तो इसलिए फ्रैक्शन तो बता दिया गया है महोदय। श्री अनिल देसाई जी। Speaker, sir. Sir, Minister has given a very elaborate answer. I wanted to ask a supplementary